So after exploring Jagar Fort at our best, we rode downhill through these winding roads to reach Amir Palace, which looked beautiful even at the first glance. But before visiting Amir Palace, we'll visit something else which not many people are aware of, and that's an important step well. All right, so we directly came here from Jagar Fort. Jagar Fort, you saw it, it was really interesting. We really liked it. You have to visit there when you come here. And right now we are here at Pinna Minaka Kun. Panna Minaka Kun. Anyways, if you saw, like, first of all, in Jagar Fort we reached by 3 and we started our tour by 3:30 and we ended by 6. So it took 2.5 hours, and now it took like half an hour to come till here. If you saw, we just crossed the Amir Fort. That is our last spot. We'll show you that. And right now we are here, and this is actually a stepwell, and it's a very interesting one because we have seen it in movies only, and this is the first time we have seen it with our eyes. So this was used by the common people in that century here. So this is very interesting. We have taken some pictures. You can see them in our Instagram handle. So yeah. So now we are heading to Amir Palace, which has two entrances. One is front entrance, which is known as Suraj Pol, and a back entrance, which is known as Chand Pol. If you are in a scooty, then you can ride uphill directly to the entrance of Amir Palace, Chand Pol, and the ride is an interesting one as well. अभी पन्ना मीना से सीधा हम लोग आ गए आमिर फोर्ट। जो आपने रास्ता देखा था पन्ना मीना का, वहाँ से ही आप स्कूटी लेके आमिर फोर्ट तक आ सकते हो। इसको फोर्ट भी बोलते हैं, आप पैलेस भी बोल सकते हो। इसमें दो गेट थे, एक है आपका चांद पोल और एक है सूरज पोल। तो हम लोग जिस साइड से आए हैं वो था चांद पोल, जिससे आप स्कूटी ऊपर तक लेके आ सकते हो। और जब ऑन द वे हम लोगों ने आपको मेन गेट दिखाया था, वो है सूरज पोल से। वहाँ पे भी आप रख के गाड़ी, बस उधर से आपको दो ऑप्शन है, आपको या तो पैदल आना पड़ेगा, वो काफ़ी ऊपर है, नहीं तो आप यहाँ पे जैसे हम लोगों को लास्ट फोर्ट पे हम लोगों ने काट किया था, वैसे आप लोग कर सकते हो। वो लोग पिकअप एंड ड्रॉपिंग दे देंगे। तो चलिए पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, सच में ये पैलेस बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़, इसको हम लोगों ने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ का लाइटिंग बहुत खूबसूरत है और कुछ शायद शो भी होता है। तो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए। There were entry tickets to visit the inside of the palace, and it costed us rupees 102 per person. And along with that, let me give you an important recommendation. If you have seen our last episode, then you'll know that we started our day pretty late at around 11 a.m. But let us recommend you to start your day by 9:30 or 10 max. You will be able to explore Amir Palace during daylight and also in the artificial night lights as well. Plus there are a few things that closes down by 7 p.m. which we'll talk about it in a moment. So this is basically Diwan-e-Aam, also can be told as Hall of Public Audience. This is the court where Raja used to meet the common audience and resolve the issues with his ministers.
So this way they have the Turkish baths, the hammam. It's closed right now. We cannot go and show you, or we can see it. So let's go to the next spot. So after this Diwan-e Khas, you can see this gate. This is called the Ganesh Pool or the Ganesh Gate. It gives access to the inner and private parts of the palace. So let's go. Look at the work at this Ganesh Pool or Ganesh Gate that you can see. तो हम लोग दीवाने आम से गणेश पुल होते हुए ऊपर आए और यहाँ पे है दीवाने खास, जो मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हो। दीवाने खास इसलिए बनाया गया था ताकि बाकी जो रूलर्स है, जो गेस्ट है राजा के, और वो बाकी रूलर्स के साथ यहाँ पे आके बैठ सके, बात कर सके। तो इसी रीज़न से दीवाने खास को बनाया गया था। इसका जो कारीगरी है वो कम्प्लीटली अलग है। इस पर ग्लास वर्क है और साथ में जैसे कि होता ही है सब कुछ हैंड वर्क ही है उन लोगों का। तो फिर देखते हैं दीवाने खास को, और बाकी यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलते हैं ऊपर, वो सब भी देखते हैं। So as she told, this Diwan-e Khas is also known as Sheesh Mahal, or can be told as the Palace of Mirrors. It exudes opulence and extravagance with its intricate setting of precious stones and mirror work on walls and ceilings. It was very beautiful to look by the naked eye. अभी है हम लोग सुख मंदिर पे, या फिर आप इसको दीवाने खास भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है वो आके समर्स पे रहते थे। इधर का जो रूम है वो सब बड़ा बड़ा रूम उसी हिसाब से बनाए गए समर के लिए, और साथ में बरामदा भी है जिससे आपको गार्डन व्यू भी मिले। और एक ख़ास बात इस जगह का, एक्चुअली इस पूरे एरिया का, कि जो जोधा अकबर मूवी है वो भी यहाँ पे ही शूट हुआ था। कुछ सीन यहाँ से ही उन लोगों ने किया था। तो फिर बाकी भी स्पॉट हम लोग देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, ये पुराने ज़माने की एसी बोल सकते हैं आप। यहाँ से पानी का फ्लो होता था और वही पूरा रूम को ठंडा रखा करता था। तो इसलिए यहाँ पे समर में वो लोग आके रहते थे, क्योंकि एसी का भी प्रोविज़न यहाँ पे अच्छे से था। Oh, we love these tunnels. इतने छोटे छोटे टनल्स। टनल से निकलने के बाद हमें मिला रानी का अपार्टमेंट, जो कि 2 BHK की जैसा ही था। जो मेन रानियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको ही सारी फैसिलिटीज़ वो लोग अवेलेबल करवाते थे। ये था बीच में बाथटब जहाँ पे रानी नहाती थी, और साइड से जो सीढ़ियाँ जा रही है वहाँ से ही बाकी रानियाँ ऊपर की ओर जाती थी जहाँ पे था उनके कमरे। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये ओपन एरिया है। यहाँ पे सारे रानियों को रखा जाता था। ये जो कमरे हैं वो एक टनल जैसा उन्होंने रास्ता बना के रखा था, ताकि कौन सी रानी के घर पे कब हो जाए, मतलब रूम पे वो कब हो जाए, किसी को पता नहीं रहता था। और स्पेशली जब वो लोग यूथ पे जाते थे, यूथ के दौरान रानियों को यहाँ पे कोई जो मेल है उनको एंटर करना अलाउ नहीं था। तो उस टाइम पे उन लोगों की देखभाल के लिए यहाँ पे किन्नर रहा करते थे, और किन्नर के अपार्टमेंट जो है
वो ऊपर ही वो किन्नर लोग रहते थे। और उसके ऊपर से और एक गॉसिपिंग बात कि जो 12 रानियाँ थी वो एक दूसरे से मिल के गॉसिप करना, बात करना चाहते थे। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि सारे त्यौहार वो लोग एक साथ मना सके, वो लोग एक साथ बात कर सके, तो इसलिए ही ये चीज़ उन्होंने बनाया था। तो इस जगह का जो लास्ट राजा था वो जय सिंह था। मान सिंह ने ही ये सब कुछ बनाया है, लेकिन लास्ट राजा यहाँ पे जो रहा था वो था जय सिंह। तो फिर और क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग। So that you can see is Raja Mansing's palace where he used to stay. But the thing is, it gets closed down by 7 p.m. So we didn't know that. We missed that, and you keep that in mind so that you come in time so that you can see the whole palace. In our last episode, we are talking about a tunnel repeatedly that connected Amir Palace to Jagar Fort, and finally we have reached the main entrance of the tunnel. Now to know why this tunnel was so important, to check out our last episode. So we came back to from where we started, and I'll go back home now. Here, if you can see, there's a temple here. We'll not go now because we are very tired. We'll leave. आज हम लोग एंड करने वाले दोनों एपिसोड एक ही साथ, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने जो सब कुछ देखा वो सब कुछ, और इस एपिसोड का सब कुछ हम लोगों ने एक ही दिन पे कवर किया था, इसलिए हम लोग का देख काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था और काफ़ी लंबा गया। तो हम लोग पहले के नाहरगढ़ फोर्ट में, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा है ऑलरेडी, नाहरगढ़ फोर्ट में एक पैलेस था, ओपन एरिया था, और नाहरगढ़ फोर्ट में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जैसे ये टॉय डांस वगैरह जो उन लोगों का ट्रेडिशनल है, वो सब कुछ भी हम लोग को देखने को मिला। लेकिन जयगढ़ फोर्ट जो था वो ऑसम था, क्योंकि उसमें सब कुछ एक हिस्ट्री, जो उस टाइम के जो राजा थे वो कैसे सब कुछ संभालते थे, क्या क्या चीज़ वो लोग यूज़ करते थे, वो सब कुछ हम लोग को जयगढ़ फोर्ट में स्पेशली देखने को मिला। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि जयपुर की हर एक प्लेस जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वो सब कुछ मस्ट विजिट है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब भी आप लोग कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाओ, बस जाके वो चीज़ को देख के मत आओ। कोई भी एक गाइड हो या फिर उधर के जो गार्ड रहते हैं उनको भी आप लोग पूछ सकते हो, वो लोग भी बहुत प्यार से इलाबोरेट करके आपको बताएंगे। तब क्या होता है, जब हिस्ट्री पता होती है तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, वैल्यूज हम लोग को समझ में आती है। तो जयगढ़ फोर्ट सच में औसम था। उसके बाद बात करते इस एपिसोड के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था पन्ना मीना की कुन के साथ, जो ऑलरेडी मैंने संजू ने बताया है कि वो एक स्टेपवेल है, और उधर के लोग जो लोकल्स है वो यूज़ करते थे वो स्टेपवेल उस टाइम पे। और उसके बाद हम लोग गए आमेर फोर्ट या फिर आमेर पैलेस, जो पैलेस जयगढ़ फोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट के बीच में एक टनल भी है, उसके बारे में भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। आमेर पैलेस में हम लोगों से एक छोटी सी गलती हुई, जैसे ऑलरेडी संजू ने बताया है कि हम लोग निकले 11 बजे, पर हम लोग को मिनिमम 9 o'clock तक निकलना था। आप लोग भी 9 बजे तक डेफिनेटली निकलिएगा, क्योंकि दिन काफ़ी लंबा जाने वाला है। तब क्या होगा, आमेर पैलेस थोड़ा सा दिन के टाइम भी आप देख सकते हो, आफ्टर दैट लाइटिंग में भी आप लोग देख सकते हो। लाइटिंग में आमेर पैलेस बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे हम लोग को लगा था एक लाइटिंग शो भी है, जो कि हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन पैलेस रात की और दिन के टाइम दोनों टाइम ही देखने लायक वो खूबसूरत रहता है। और बाकी ऑलरेडी सब कुछ वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को बता ही दिया है, बताने के लिए और कुछ भी है ही नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी जानना है शेयर कीजिए, जिसके साथ आप जयपुर आने के लिए प्लान कर रहे हो। अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट वही है, उसे भी जाके पहले आप लोग देख लीजिए। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट।